Okay, so this is the all new Duke 390R. I mean, like, this is the actual Duke 390 जिसमें आपको 390 सीसी मिलता है, 46 bhp, 39 of torque. It's very aggressive. It's very aggressive. आज हम इसको चलाने वाले हैं इन पहाड़ों के रास्तों में. आपको मैं दिखाने वाला हूँ that how does this actually perform, and it's very brutal. It's very aggressive, guys. Like, let me show it to you. इससे आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों आप कर सकते हो. इट्स वेरी एग्रेसिव. इट्स वेरी एग्रेसिव मैन. मतलब ये मशीन हर किसी के लिए नहीं है. अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है to ride a powerful machine, then I would suggest not to go with this, especially for a mountain people जो लोग पहाड़ों में ज़्यादा चलाने वाले हैं, because like this machine is very aggressive that it can throw you away. ब्रेकिंग भी उतने ही बेहतरीन है, तो you can manage it, but at the end of the day you have to be very conscious riding this machine. So whenever you are pressing the front brake, it feels like it is going to be a stoppie. It's that aggressive. So इसमें आपको मिलता है actual 46 bhp and 39 Nm of torque, जो कि बहुत ही aggressive है when it comes to the real life experience. Like, you feel that yes, you are riding the actual 390R. I mean, like, you can't go much fast on this motorcycle because it is very aggressive. And आपको एक डर सा लग जाता है पहाड़ों में जब आप चलाते हो, that अगर बहुत ओवर थ्रॉटल आपने कर दिया, then I don't think so it is going to stop at a predefined location and you might crash. So yes, Duke 390R is very aggressive as compared to the Duke 390, which is 350cc. It's way ahead than the 351, because 350 में आपको फिर भी लगता है कि हाँ, it's under your control, but it says the 390R, you are in my control. So yeah, it's very aggressive. This is very aggressive. क्विक शिफ्टर इतना स्मूथ है ना इसका. अगर आप इसको 6 to 7,000 RPM के ऊपर अगर आप इसका क्विक शिफ्टर को एंगेज करते हो, इट गोज लाइक अ बटर. बहुत ही स्मूथ फील होता है. सो इसका क्रैक यही है कि अगर आप इसको चलाते हो, इफ़ यू आर बियॉन्ड 6 to 7,000 RPM, shift
द गियर एंड इट विल फील वेरी इजी। आप उसके नीचे कर सकते हो, बट कई बार जो है उतने स्मूथ एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप इसको बहुत कम आरपीएम पे अगर करते हो। मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि ये मोटरसाइकिल जो है पहाड़ों के लिए नहीं है। दिस मोटरसाइकिल इज़ फॉर हाईवेज, दिस मोटरसाइकिल इज़ फॉर ब्रॉड माउंटेन्स। जैसे मान लो हिमाचल उत्तराखंड के जो पहाड़ के रास्ते हैं ना, उस तरह के रोडों के लिए है। ये अपना दार्जिलिंग वाला रास्ता के लिए तो ड्यूक 390R इज़ वेरी एग्रेसिव। आई एम नॉट गेटिंग द स्पेस टू pull the throttle at least. जैसे ये स्पीडोमीटर का ये पूरा इंटरफेस रेड हो जाता है ना, अलग ही फील होता है इसका। It's that you have to keep your fingers on the brake lever just to make sure that everything is safe. बट अगर आप इसको ऑफ रोड पैच पे चलाते हो, से अपना इंडियन कंडीशन के हिसाब से, जैसे ऑफ रोड पैचेस आते हैं ना ख़राब रास्ते कुछ कुछ जगह पे गली वगैरह में, तो वहाँ पे ये आपको बहुत ही स्लो कर देगा। और अगर आप पिलियन के साथ हो तो पिलियन माइट फील मोर अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन एंड ऑल्सो ऑफ द सिटिंग कम्फर्ट। तो या अगर रास्ते ख़राब है देन ड्यूक 390, चाहे कोई भी मॉडल हो, 250 हो, 350 हो या 390 हो, it is not going to give you that comfort zone, neither you neither your pillion. And if it is a straight highway, then the pillion might be feeling uncomfortable because of the aggressive power, because ये बहुत एग्रेसिव है। तो पिलियन को जो है एकदम आपके साथ फेविक्विक लगा के बैठना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग जो है छिटक के गिर भी सकते हैं। एंड इट मेक्स the pillion much more uncomfortable because they are not used to with the G-force, you know. So it's always the physics that applies when you ride a motorcycle. So जो G-force है वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, and due to which reason they will feel uncomfortable. Like I am unable to pull the motorcycle to the full. The moment I'm pulling, I need to apply on the brakes. So yeah, I mean like you can understand that इसको तीसरा या चौथा गियर is I mean like fourth gear is a very good sweet spot to begin the ride on a flow, but you cannot go fast. And अगर इस टाइप के conditions है तो you need to come to the maybe second or third. मैं जब भी थोड़ा कम आरपीएम पे होता हूँ ना, आई ऑलवेज प्रेफर टू शिफ्ट द गियर विद द प्रेसिंग द क्लच बिकॉज इट डजेंट अफेक्ट योर इंजन। हालांकि क्विक शिफ्टर है, बहुत लोग बोलते हैं क्विक शिफ्टर है, मैं क्लच क्यों प्रेस करूँ। मेरे को एक किसी ने तो कमेंट किया था जब ब्रांड ने क्विक शिफ्टर दिया है तो मैं क्लच प्रेस क्यों करूँ। then I think that person needs to reconcile with maybe showroom guy जो उनको समझा पाए, अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज है दैट क्विक शिफ्टर दिया है इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लच बिना दबाए गियर शिफ्ट करोगे। क्विक शिफ्टर दिया गया है सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू यू नो फील दैट क्विक शिफ्टर प्लस का जो फीचर है वो बेसिकली ट्रैक मोड पे आपको ज़्यादा फील होगा बेहतरीन तरीके से, बिकॉज ट्रैक मोड इज़ दैट मोड जहाँ पे आप कोई कंपटीशन पे हो, यू डोंट वांट टू इवन लूज 1 millisecond you know in the process of pressing the clutch and shifting the gears up या down. so इसलिए आपको जो है क्विक शिफ्टर दिया गया है दैट टू इन अ ट्रैक मोड। ओके, हालांकि आप इसको स्ट्रीट मोड पे भी चला सकते हो बट ट्रैक मोड पे ये और ज़्यादा फ्लॉलेसली काम करता है। सो यस, क्विक शिफ्टर मीन्स यू कैन शिफ्ट द गियर without pressing the clutch and at a serious situation like maybe ट्रैक वगैरह कर रहे हैं तो। सो प्लीज़ इसका ये मतलब मत करना कि क्विक शिफ्टर दिया गया है मुझे
बिना क्लच दबाए ही जो है शिफ्टिंग करना है। लॉन्ग टर्म का रोड धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है, जिसकी वजह से ना पत्थर वगैरह आ जाते हैं एंड इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल टू राइड एंड यू डोंट फाइंड दैट कॉन्फिडेंस anymore in this road because there are a lot of small pebbles on the road. राइड बाय वायर क्या ही फील है, राइड बाय वायर का तो क्या ही कहना। लाइक KTM आई थिंक दे हैव एक्सेल्ड इन अ राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। व्हाट अ फील, यू नो, व्हेन वंस यू राइड अ KTM मशीन यू विल फील कि उनका जो राइड बाय वायर है 390 या 250cc सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट। अभी हम जो है ये वाले पैच में थोड़े से जो हैं भगा के चेक करने वाले हैं दैट हाउ डज दिस परफॉर्म। ओह यस, लेट्स गो। Aggressive, man. In fact, the braking, look at the braking, it's damn comfortable and it's really biteful. As I said, it is very aggressive. You need a lot of control on your hands to, you know, to control this sort of motorcycle. Please don't try and attempt जिस तरीके से मैंने चलाया। Till then, like, comment, share, whatever you want. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। बाय बाय।